थैंक यू। क्वेश्चन 136 एसोसिएट वाले नाम भेज दीजिए। क्वेश्चन 136 श्री धर्मपुरी श्रीनिवास ऑब्सेंट। मिनिस्टर श्री विजय साई रेड्डी। Mike, sir. माइक है। Sir, there are reports which suggest that the proposed dedicated rail corridor could impact the tax collections and therefore affect the infrastructure companies who construct, maintain and run the national highways. How is the government planning to successfully achieve the target of 1 lakh crore in toll revenues, sir? No, Vijay Sai Reddy ji, whether it is a fact that the government has given acceptance for construction of national highways in the state of Telangana. In so details. It funds. applies to That is the Telangana question. also, sir. It's throughout the No, country. first also. we have to address the question. Sir, national highways are there in every state, sir. Not only in Telangana, everywhere. No, So that's not the issue. Question 137. P. Prakash Verma. Okay. So, Mantri ji, Nitin ji, second question. Supplementary, Sri Prasanna Acharya. Sir, the NHAI has been taking many projects all over the country. I would like to know from the Honorable Minister through you, sir, in how many projects the work has not been completed on time as stipulated, and due to overrun of time, what is the extra expenditure that has been incurred, and what is the extra load on the country's exchequer, and what are the major reasons for the delay of the projects, and those who are responsible for delaying the projects, what action the government has taken against them? Mantri ji. Sir, totally the projects which are delayed already in the ministry, we have find out the solutions with the considering all the aspect of the project related with the bankers, related with the land acquisition, related with the utility shifting, with the forest and environment department. And sir, now the speed is increased. Once upon a time it was coming to 2 kilometers per day. It is now 30 kilometers per day, 15 times more. But still there are problems. Just I am giving an example, only the project related to the State Bank. The State Bank chairman submitted me the total project which they are facing the problems, 26 projects, and fifth there is a meeting with the bank, and we are resolving the issue. But basically in the majority cases, it's really a fact that many times government has to pay too much cost for the project, and that is because of the delay in land acquisition, delay in clearances, and after when we get the clearances, the project, the banks also create problem after that because of delay. They say it is an NP account. They are not in position to finance it, and then again the vicious circle starts. Right. But now the positions are good. We don't have any financial problem. We have BOT, PPP, hybrid annuity, and now the good project is also new innovative project we have selected. That is we monetize the project. That is on TOT. So everywhere we are getting funds, Right. and we are in position to implement the project. Hussain Dalwai. ये जो एग्रीमेंट होता है हाईवे बनाने का, वो एग्रीमेंट में पुराना जो रोड है उसकी मरम्मत करने का काम वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दिया जाता है। लेकिन जहाँ मैं मुंबई गोवा रोड की बात करता हूँ, वहाँ तो वो रोड 5 साल में पूरा हुआ नहीं। जो हुआ है वो उसमें जो बाकी है उसमें इतना ख़राब है कि वो बिल्कुल मेंटेन किया नहीं जाता। ये मुंबई से चिपलून तक जाने के लिए मैं 5 घंटे में जाता था, आज 9 घंटे लगते हैं। तो ये इसके बारे में क्या कर रहे हैं, वो मेंटेन करने के लिए कुछ उनको ये करते सजेशन दे रहे हैं या नहीं? मंत्री जी। सर, सम्माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वो कोंकण के रहने वाले हैं और उनको पता है कि कोंकण में मुंबई गोवा पर कितनी जगह पर काम शुरू है। उनको ये भी पता है कि पहले ये प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, और स्टेट गवर्नमेंट में देने के बाद पनवेल से लेकर प्रोजेक्ट कितने सालों से अटके हुए थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई गोवा ये देश का बिजिएस्ट कॉरिडोर है,
बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं और पूरे रोड को 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का बनाने का हमने हमारी सरकार आने के बाद निर्णय किया। जो प्रोजेक्ट पुराने सरकार में स्टेट गवर्नमेंट ने उस समय के कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट में दिए गए थे, वो कॉन्ट्रैक्टर के काम उसको सेटल करते मेरी कम से कम 30-30, 40-40 मीटिंग हुई। 3-4 मीटिंग में तो ये भी उपस्थित थे। वो और ऐसा नहीं resolve हो लिखा गया। ना। हाँ, ये रिजॉल्व हो गया। सम्मान्य सदस्य भी हाँ, सम्मानित सदस्य भी उपस्थित थे, वो Right. रिजॉल्व हो गए। अब मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर मुंबई गोवा ये पूरा होगा। उसमें से जो गोवा के तरफ से 2 पैकेज है वो लगभग पूरे होते हुए आए हैं Right. और बाकी जल्दी पूरा। उसका प्रारंभ में इनाग्रेशन में सदस्य को भी ले जाइए। विजय गोयल। सभापति जी, आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो उन्होंने बनाया उसके कारण दिल्ली का पर्यावरण सुधर गया। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है दिल्ली नरक हो गई, नरक से भी नरक हो जाती। मेरा प्रश्न मंत्री जी को ये है, आने वाले समय के अंदर दिल्ली की ऐसी कौन सी योजनाएं आ रही हैं जिससे कि प्रदूषण और कम हो सकता है, और इसमें दिल्ली सरकार की क्या भूमिका है, उनकी कितनी फंडिंग है? माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लिए करीब 50,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से जो ट्रैफिक मुंबई, गुजरात जाता था, वो दिल्ली के बीच में से जाता था। अभी हमने पूरी रिंग रोड बनाने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट में फंसा था, जिसके लिए भूरेलाल कमेटी बनी थी, आपको उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, पर वो सब प्रॉब्लम रिजॉल्व होकर वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अभी हम लोग द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 10,000 करोड़ का बना रहे हैं। फिर आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, आप सब लोग रोज़ हवाई जहाज़ से एयरपोर्ट से आते हुए धौला कुआं करके था, तो धौला कुआं पर सब लोग अटक जाते थे क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम होता था। तो कुआं एनएच भी नहीं था, एनएच तो ब्रिज पर ख़त्म हो जाता था। मैंने उसको एक्सटेंड करके ये ताज मानसिंह के ब्रिज तक और उसको करके अब उसको भी सुधारा। इससे दिल्ली के बहुत से हमने स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे काफ़ी रोड पर काम शुरू है और दिल्ली में आने वाले समय में प्रदूषण कम होगा। इसमें दिल्ली सरकार से कोई सहयोग क्यों नहीं, क्योंकि एनएचआई कर रही, पर एक जो ईस्टर्ली वेस्टर्ली बाईपास है उसके लैंड एक्विजिशन के लिए यूपी की सरकार, हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सरकार 50% लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट देने वाली थी, पर वो कॉस्ट उन्होंने दी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। क्वेश्चन 138 डॉक्टर रामचंद्र राव। सर, वो आंध्र का क्वेश्चन है, माफ हिमाचल का है। Answer is laid on the table, sir. Sir, Honorable Chairman, sir. रामचंद्र राव जी, मंत्री जी रिप्लाई। हाँ, सप्लीमेंट्री 1। Sir, Honorable Chairman, sir. The government says that the revised cost estimates were accepted by CWC and approved by Technical Advisory Committee for rupees 55,548.87 crores at 2017 and 18 price level. On the other hand, it says the center will bear the irrigation component price of the project as on 1st April 2014 only. Sir, here my question is, who will bear? That means whether it is a state government or central government, who will bear the difference of prices between 1st April 2000 price level and 2017-18 price level, including land acquisition and RR of this project, sir? मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो जल शक्ति मंत्रालय को या तत्कालीन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर को जो निर्देश दिया था, उसके आधार पर इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि 1 अप्रैल 2014 तक की कॉस्ट को जो है वो नेशनल प्रोजेक्ट मानते हुए इसको भारत सरकार बियर करेगी। रिमेनिंग कॉस्ट के लिए और जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है उसके लिए, जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, रिवाइज कॉस्ट कमेटी बनाई गई थी। रिवाइज कॉस्ट कमेटी की 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें स्टेट से जो इन्फॉर्मेशंस मांगी गई वो इन्फॉर्मेशंस अभी पेंडिंग है। क्वांटिटी ऑफ द लैंड के ऊपर, द कैटेगरी ऑफ द लैंड के ऊपर एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड एक्विजिशन, क्योंकि इसमें जो बड़ा डिफरेंस है वो सारा कॉस्ट ऑफ द लैंड एंड RNR इश्यूज़ का है, उसकी कॉस्ट के ऊपर मांगी गई। वो इन्फॉर्मेशंस पूरी आने के बाद में इस पर। डॉक्टर रामचंद्र राव, सेकंड सप्लीमेंट्री।
Sir, the Polavaram project was given as a boon to state government by the Bifurcation Act, particularly your role in getting it as a national project was very much appreciated, sir. Sir, the Polavaram project has been declared a national project through AP Reorganization Act. The Act mandates that construction of this project is the responsibility of central government. But Center has given the construction to state government in September 2016, sir. Sir, the state took 1 year to prepare revised estimates. No supplementary. Sir, supplement, sir. CWC and the Technical Advisory Committee took 17 months to approve it. Now, sir, it is pending with the government since the last 9 months, sir. Sir, my question is, when the central government, CWC, Polavaram Project Authority and the state government could not finalize the revised estimates even in 3 years, what is the future of this project, sir? Right. The project is supposed to be completed by 2018, sir. When will it be completed, sir? Mantriji. See, that's because this project is being constructed by the state government. And the revised standard which has been done right now, before a couple of weeks ago, and the state have decided and given, as per the new revised standard agreement, they have given the date of completion for December 21. So I hope that by December 21 this project will be completed. Shri Jairam Ramesh. You are very well aware that Section 90 of the Andhra Pradesh Reorganization Act gives the responsibility for the construction and completion of the Polavaram project on the central government. I want to ask from the Honorable Minister that clearly Section 90 has been given the go-by. What is the commitment that the Minister can make when the Polavaram project will actually be completed? Mantriji. सी जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का जहाँ तक प्रश्न है, पहले उसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी और वर्तमान में जैसा मैंने कहा कि अभी हाल ही में इसका टेंडर स्टेट ने रिसाइन करके और नई टेंडर एजेंसी को दिया है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये उसके कारण से कॉस्ट जो है वो कम हुई है, लेकिन उसके कारण से उसकी जो समय सीमा जिस तक ये जो है पूरा होना चाहिए था, ये समय सीमा बढ़ा करके दिसंबर 21 की है। लेकिन दिसंबर 21 के बाद में भी क्योंकि इसमें R&R के बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना उन सब के साथ में जुड़ा हुआ है और राज्य की सरकार इसमें R&R के इश्यूज के सेटलमेंट के लिए जितना गति से काम करेगी, जितना तेज गति से काम करेगी, उसी के साथ में उसी पर इस प्रोजेक्ट का फाइनली जिस दिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। Sasmit Patra. To the Honourable Minister is that Honourable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, has repeatedly written to the centre specifying that about 6,000 people, including tribals, will lose their land in Odisha due to large-scale submergence due to Polavaram. There are more than thousands of hectares which will get affected. No Gram Sabhas have been done in Odisha. People have not been consulted. No, you have to go through questions, Sasmit. Sir, therefore, sir, the point is, since Polavaram project is being expedited and by 2021 it will come about, sir, it is going to have a huge impact on the people of Odisha, and till now the redressal has not been made, and the Supreme Court, sir, a case is still pending, sir. So the Honourable Minister is proceeding with the work without taking into consideration. You are making comments. Sir, my only question is, how will the Honourable Minister respond to these facts which are currently pending, sir? जो माननीय सदस्य ने जो बिंदु उठाए हैं, स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन तीनों के से संबद्ध इस तरह के सारे विषय जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मुझे लगता है कि जब तक उच्चतम न्यायालय इसमें निर्णय नहीं करे उसमें यहाँ किसी तरह की कमेंट करना ठीक नहीं होगा। Please remember that Polavaram is the lifeline for Andhra Pradesh, and everything need to be done. No, I will not allow like that. Subramanian ji, please sit down. Please, this is not going on record, both print as well as. 3 questions are over. You are not hearing. What can I do? Yeah, amendment bills, supplementary 3. 139.
तीनों subsidized हैं. Why shall we? Sri Ronald Sapalao, absent. Minister. Supplementary, Sri Tiruchi Siva. Sir, the MSME sector is the second largest employment provider in the country next to agriculture sector, sir. And also a very big refuge for the unemployed youth to be an entrepreneur. But in the recent years, the MSME sector is shrinking very much due to demonetization and various other facts. And it becomes very imperative that the government should focus more on MSME. So what are the measures the government is intending to take other than the technology Right. to encourage the MSME sector, in that too, especially in the manufacturing? Okay, Sivaji. Mantriji. Sir, MSME is the heart of the subject which is related with the growth of the country. Presently, 29% of the growth is coming from MSME. 49% of the export of the country is from MSME. And at the same time, now 11 crore jobs up till now, it is created by MSME. So our concentration is maximum that how we can create more employment potential. For this 5 year, we have taken as a program where target is to increase 5 crore employment potential and taking export up to 50% and 29% growth in the total growth, where we are now planning to make it up to 50%. Right. So now presently, but we are concentrate on the rural, agriculture and tribal area, because there is a lot of migration from the agriculture, rural and tribal area to the urban area, where we need to create more employment potential in the backward area, and that is the reason that government has given special attention on the development of MSME into the rural area. Dr. Narendra Jadhav. Thank you, Chairman, sir. Sir, my question, the supplementary question relates to part D of the question about the current policy on patents right. Sir, in India, patent filing has gone up by only 10% in 5-year period between 2009 to 2014, which is not impressive at all as compared to other emerging market economies. Moreover, 75% of patent filings are in India are by foreign entities, and there is a need for a concerted action to increase the patent filings by Indian. My question, sir, is what is the current percentage of patent filings done by Indians at large, and particularly by the MSMEs, and what steps are being taken by the government to train MSMEs about the importance of patents and leveraging IPR to enhance their business model? Question has to be brief. Answer has to be much more brief. Yes, sir. Thank you. Sir, this subject is related with the Commerce Ministry. The DPIIT is the concerning authority which is dealing this subject. But from the MSME, we have a scheme that on the project cost, for that we are giving 15% guarantee need for that, and at the same time the maximum limit up to the 1 crore rupees. And the one fact is clear that we need to encourage new research, new development, because innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill is the knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. So MSME, we are seriously thinking about giving priority for all these new inventions and research, and we need to make this system simplify for the registration of that. And we are now coordination with the Commerce Ministry. We will find out the solution, and we will take you. Thank you, sir. I want to know from the Honorable Minister that recently the Minister has sanctioned rupees 200 crores MSME Technology Center to be set up in Coimbatore. And thereafter also the Union government has previously announced 12 centers for 12 cities. Now, I want to know from the Honorable Minister that what is the timeline setting up for completion of these centers in these 12 cities, and will the Minister extend it to other cities also? Mantriji. So the government has already decided to giving highest priority for development of skill and new technology, new innovations. The 12 technology centers are already sanctioned.
and where 200 crore rupees, approximately the cost government is giving for that. And we have a collaboration with the German institutions where we need to have the latest available best technology in the world. Sir, one of the problem is that the state government about the land acquisition, because the land is supposed to be given by the state government. We are in the process. Maximum places we are already received the land, and as early as possible, already tender process has already started, and we will start the work within 2 years. We want to complete that. Question 140, Sri Revati Raman Singh. 140. Mantri ji. Jawab Patel. Supplementary 1, Revati Raman Singh. मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने अमेंडमेंट किया मोटर व्हीकल एक्ट में, उसका क्या इन्होंने आम पब्लिक में जन जागरण किया? पब्लिक के बीच में क्या इसका प्रचार किया गया? पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि नहीं? अगर नहीं लिया गया तो क्यों? राइट। सर, मैं धन्यवाद दूंगा सदन को कि मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में सब लोगों ने समर्थन करके ये एक्ट पास हुआ है। पर एक बात सच है कि आज जब स्टैटिस्टिक मैंने देखा तब मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि अभी भी मरने वालों की और एक्सीडेंट की संख्या में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। इसका कारण, इसके 4 कारण हैं। पहला रोड इंजीनियरिंग के कारण है, और उसके लिए हमने 7-7 हज़ार करोड़ के 2 प्रोजेक्ट NHAI ने तैयार करके वर्ल्ड बैंक को दिए हैं, ADB और वर्ल्ड बैंक। और ब्लैक स्पॉट्स जो है जहाँ एक्सीडेंट्स होते हुए आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। सर, दूसरा ऐसा है कि अवेयरनेस के बारे में उन्होंने पूछा है। अवेयरनेस के बारे में हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, और लोग NGOs के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और अभी जो लाइसेंस बारे में भी जो हो रहा है नए एक्ट के कारण, जो फिटनेस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, उसका बहुत अवेयरनेस आया है। और कानून थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने के कारण लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है सब प्रकार से हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि मरने वालों की संख्या कैसे कम हो। मानवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी भी आप अगर देखें तो आपके जवाब में है कि घातक इंसिडेंट बढ़े हैं। बताया मंत्री जी। 0.2% उसमें वृद्धि हुई है। तो मानवर, अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन ठीक है तो ये वृद्धि क्यों घातक इंसिडेंट में हो रही? और मानवर, एक बात मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आपने मोबाइल पर भी बैन लगाया है, लेकिन मोबाइल का हो रहा है, पर ये इतना बिगड़ा हुआ था कि इसको सुधरने के लिए काफ़ी समय लगेगा। पर आपकी और सबके सदन के सभी लोगों के सहयोग से, जो पॉजिटिव सभी पार्टी के सहयोग से और राज्य सरकार के सहयोग से, सबसे अच्छा काम तमिलनाडु ने किया है, और तमिलनाडु ने कम से कम 29% रिड्यूस किया है। तो तमिलनाडु का जो कुछ उन्होंने किया वो हमने अभी सब स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है कि तमिलनाडु के आधार पर वही काम बाकी भी राज्य सरकार करे। राइट। और ऐसा प्रयास चल। कुमारी शैलजा। Must compliment the Honorable Minister on his dynamic and open-minded working style. But sir, माननीय मंत्री जी ने खुद अभी कहा कि जो नया मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया उसका मेन मकसद पैसे अर्न करना नहीं था, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं था। लेकिन सर, इतने स्टिफ पेनल्टीज की गई हैं कि जितने की गाड़ी नहीं होती उससे ज़्यादा पेनल्टी उस पर ड्राइवर पर थोप दी जाती है। और सर, कई स्टेट्स ने ये कानून मानने से इनकार भी किया है और उसको डाइल्यूट भी किया है। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि क्या आप इतनी स्टिफ पेनल्टीज को थोड़ा कम करने पर विचार करेंगे, क्योंकि इसका अगर उल्टा इफेक्ट होता है तो वो कानून कभी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने एक केस को जांचा है। वो ओवरलोडेड था ट्रक, ड्राइवर दारू पी के था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, और उसने सब गुने उसमें उसके साथ रजिस्टर हुए, तो फाइन लग गया। दूसरा इसमें ऐसा है कि फ़ाइन के बारे में ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो बहुत से फ़ाइन ऐसे है कि ये 20 साल पहले फ़ाइन तैयार हुए थे। अब रुपए का आज मूल्य कितना है वो ढूंढ लो, तो लोगों को लगता है ये बहुत ज़्यादा हुआ।
अब ये 1984 में ये आपके पुराने फाइन लगे हुए थे, आज हम 19 में हैं, तो इतने साल के बाद तो बढ़ोतरी होने वाली है। तो 50 रुपये और 100 रुपये फाइन थे, लोग पुलिस के सामने वायलेशन करके चल रहे थे। अब उसमें ऐसा है कि कुछ अधिकार राज्य सरकार का है, हमने कहा है मिनिमम 500 से 5000, तो 500 रखना, 600 रखना कि 5000 रखना, ये राज्य सरकार तय करे, उसमें अधिकार है। तो बहुत सी जगह वो उसको कंसिडर भी करना है तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप कानून को अगर भंग नहीं करेंगे तो फाइन लगेगा ही नहीं। राइट। तो हम सबको ये कहे कि आप वायलेशन क्यों करते हो, क्यों अपने जान जोखिम को इस प्रकार से षणमुगम जी, खिलवाड़ क्यों करते हो? एन षणमुगम, करेक्ट. अच्छा. This registration is really a very progressive registration. Must all respect it. In this transport industry, most of the drivers are all in unorganized sector. In Tamil Nadu, we have one auto board to give the social securities of all the drivers. On par with the same and similar, whether the minister in the central also going to be enact any Right. boards to help the poor drivers. Sir, actually, new Motor Vehicle Act, we have a lot of provisions, particularly the social schemes from the Government of India. We now are going to coordinate all the schemes for drivers, for cleaners and everybody for getting benefit from Ayusha to Pension Yojana. So everywhere we are thinking that how we can give maximum benefit to the drivers. The most important thing is now we are opening at least 1,000 driving training centers every district, where we need computer will take the test and he will decide whether he will pass or fail. So on that basis, there also the training program is there. And at the same program, we are now planning to give him all type of information regarding the welfare of the drivers. And under the different schemes, we will cover that. And we are very Right. positive about to how we will be helpful for the Right. drivers. Srimati Kanta Kadam. जी सर। सर मेरठ से गढ़ जाने के लिए सिंगल रोड है वहाँ पर, और वहाँ से ब्रज घाट जाने के लिए, और आगे हाईवे वहाँ पड़ता है लखनऊ जाने के लिए। एक्सीडेंट वहाँ बहुत होते हैं और बिल्कुल अंधेरा है, एकदम जंगली इलाका है वहाँ। हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि ये 4 लेन होगा या 6 लेन होगा, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल था, क्या ये रोड आपके प्रोजेक्ट में है मेरठ से गढ़ के लिए? राइट. इसको ध्यान में लीजिए, बस सुझाव है, ध्यान दीजिए. क्वेश्चन 141 सुशील कुमार गुप्ता जी. क्वेश्चन 141 मंत्री जी, यूथ अफेयर्स, सप्लीमेंट्री 1. माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, हिंदुस्तान में प्रतिभाशाली खिलाड़ी बहुत हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जब खिलाड़ी खेलता है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी कारण से जाने से बच जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब खिलाड़ी जाता है तो उसको तो बहुत पैसा और फेमस मिलती है, परंतु जो राष्ट्रीय स्तर पे कई बार मेडल जीतता है उसको कुछ नहीं मिल पाता, ना ही उसकी नौकरियों में रिजर्वेशन हो पाती। मैं सर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कुल 13 लोगों को दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब जानकारी दे रहे, आपको सवाल पूछना है, उस सवाल तक क्वेश्चन। 6 राज्य मिलके 13 लोगों को पेंशन दे रहे हैं। क्या ऐसा प्रावधान भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसा बनेगा कि इन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पेंशन देने की योजना बनाए? राइट. मंत्री जी. पेंशन तो भारत सरकार की ओर से दे ही रहा है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे तो खिलाड़ियों के लिए हम लोगों का पास काम करने का बहुत कुछ है, लेकिन भारत सरकार को हर राज्य के जो खिलाड़ी नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं उसके जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेना होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब इंटरनेशनल खेलते हैं भारत के लिए तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार का होता है। लेकिन जो मेडल मिल चुके हैं कैटेगरी है, बहुत डिटेल में आपको जवाब भी दिया गया है कि ओलंपिक्स में मेडल मिलने का अलग पेंशन स्कीम्स है, उसके बाद में अगर एशियन गेम्स में मेडल मिलता है उसका अलग पेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मेडल लेता है उसका पेंशन मंथली जाता है, वो डिटेल आपको दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स वेलफेयर के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन वेलफेयर के लिए अलग से जो मंत्री मेरा पास डिस्क्रिशन पावर है, 10 लाख तक कोई भी खिलाड़ी अगर उसका तकलीफ है, जीने के लिए तकलीफ है, मेडिकल के लिए,
उसका भी हम देते हैं, उसका भी ब्यौरा सेकंड हमने आपको दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री सुशील जी। 3 साल के अंदर किया गया खिलाड़ियों का। मेरा इस सवाल से हटके सवाल ये है कि हमारे यहाँ साधनों के अभाव में, स्टेडियम्स के अभाव में खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते। कुश्ती वाले को मैट नहीं मिलता, अच्छे टर्फ के ग्राउंड नहीं मिलते। क्या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जिला स्तर पे कोई ऐसा स्टेडियम और उसके अंदर खेलों की नर्सरी बनाने का प्रावधान भारत सरकार चाहती है करना? राइट मंत्री जी। हमने अभी 2 महीने पहले निर्णय किया कि भारत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा मंत्रालय का अधीन है, कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, सारा स्पोर्ट्स पर्सन और एक्रेडिटेड कोच के लिए हमने फ्री कर दिया है। 1 रुपया अभी हम किसी स्टेडियम को यूज करने के लिए हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये क्रांतिकारी फैसला है, कितना खिलाड़ियों ने इसका सराहना किया है। इसके अलावा सारा फैसिलिटी तो हम कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का है, फेडरेशन का है, वो भी अपना अपना स्पोर्ट्स फैसिलिटी को खिलाड़ियों के लिए फ्री खोल देना चाहिए, ऐसा मैंने आग्रह भी कर चुका है। श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, स्पोर्ट्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोसेस रिवार्ड होता है, दूसरा आउटपुट रिवार्ड होता है। आउटपुट रिवार्ड तो हमने सुन लिया कि मिल रहा है, लेकिन जो प्रोसेस रिवार्ड होता है, जब खिलाड़ी खेलने के क्रम में नेशनल लेवल तक पहुंचते हैं, यदि वह कोई मेडल नहीं लेकर आते हैं तो क्या उनका रिकॉग्निशन होता है? उनको वही सुविधाएं ही मिलनी चाहिए। मेडल मिलना एक एक्सीडेंटल भी हो सकता है, 4 में से 1 को मिलता है। तो जो लोग नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उनकी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक वेबसाइट जारी करे, उनके परिवार और उनका ख्याल रखा करे, ये प्रोसेस रिवार्ड को शुरू किया जाए इस देश में। मंत्री जी। सर, खिलाड़ियों के लिए सबको मिल के सोचना होगा, सिर्फ सरकार को नहीं, क्योंकि उसको साधन देना, नौकरी देना, उसके भविष्य के लिए, परिवार के लिए हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को भी पुकार किया है। अभी स्पोर्ट्स समिट हमने किया है, $10 बिलियन का एक टारगेट लेकर के हमने सबमिट किया है। ये बड़ा एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनते जा रहा है। स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ भी है और एक इकोनॉमिक एक जरिया भी बनते जा रहा है। इसलिए सब मिल करके ये करेंगे। तो जैसे कबड्डी लीग है सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात, कबड्डी लीग है उसमें कोई भारत के लिए तो खेला नहीं है या कोई प्लेयर मेडल नहीं जीता, लेकिन कबड्डी लीग में खेलने की वजह से उसको करोड़ों रुपया अभी मिल रहा है हर साल। इस तरीके से तरीका हम लोग निकाल रहे हैं देश भर में, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। राइट, कबड्डी हमारे भारतीय खेल है, उसको प्रोत्साहन करना। क्वेश्चन 142 KG Alphonse. 42. The table of the House. Supplementary one. Sir, while I compliment the Honourable Minister for having increased the forest cover by 1%, which is by 8,021 square kilometers, and it's gone up to 21.54%. There's a big worry, sir. The forest cover in Northeast has come down by 630 square kilometers. So what is the reason for this, and what is the remedial measures that the government is taking? Right, Mantriji. Northeast has a peculiar problem because it has a tradition of zoom cultivation. These are private forests and they go on changing the sites, so that's a problem. So 600 square kilometers of forest overall, because that is where the forest cover is 75% plus in all states. So only 600 have gone down, but we have there will be new survey of 2019, which will definitely be this month end only, and so let us wait for that. It will give good picture, I think, and more importantly, we are calling separate meeting of Northeastern State Minister. 2 days ago, we had meeting of all forest ministers of the country. Right. And we'll have separate meeting for this. Second supplementary. So while I compliment the government again, because the tiger count in this country is an all-time high of 2,226, while the worrying factor is 23 lions died in Gir forest in September, October last year, and out of which 4 had died of a disease called bovine distemper virus. Sir, has the ministry investigated the reason for this, and are you sure that this kind of this bovine distemper virus would not affect the lions again? Yeah, we must be proud of our whole ecology system, and the tiger number is not 2226. It was last time. Now it is 2967.
सो 2,976 पिछले 4 साल में 750 टाइगर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। लायंस का जहाँ है या टाइगर का है, हाथी का है और राइनो का है, ये भारत की संपदा है और इसमें कोई भी वायरस से अगर कोई मृत्यु होती है तो हर एक की स्पेशल जांच होती है और उसके उपाय किए जाते हैं और इसीलिए यह हमारा नंबर बढ़ रहा है। श्रीमती प्रभा ठाकुर। अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश है, इसकी इकोनॉमी जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है और हम चाहते हैं कि कवर ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो कमी है उसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देगी, जिससे कि वहाँ के फॉरेस्ट ना कटें और वैसे के वैसे रहें, क्योंकि ये एक बात आ रही है और बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट के साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जितना कटाव होता है वो जरूरी होता है, उसी से फॉरेस्ट ग्रो होता है, लेकिन अवैध कटाई न हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए पूरी चुस्त योजना बनी है और हिमाचल ने अपने फॉरेस्ट कवर में ग्रो करने का एक 5 साल का बहुत एम्बिशियस कार्यक्रम बनाया है, हम उनको सहयोग दे रहे हैं। श्री पीएल पुनिया। Gotcha. Next question. Then we'll go to next question, that is the 143, Muhammad Nadimul Haq. So we'll go to the next question. Mantri ji, sabha padh हाँ, lay on the table. Question 144, Dr. Vikas Mahatme. 144. Supplementary. सर, मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब ने डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे पहली बार दिसंबर में 2015 में ये पॉलिसी लाई असिस्टेंस की डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए बजट में कितना पैसा आवंटित किया था और उसमें से कितना उपयोग में लाया गया है, यूटिलाइज कितना किया गया है? Allocation, expenditure. माननीय अध्यक्ष श्री, शिप बिल्डिंग के लिए 2016 से 2026 तक 10 साल की एक इंटेंसिव योजना बनी हुई है और उसमें से 20% जो इंडियन शिप यार्ड में शिप बिल्डिंग होता है उसमें 20% हम उसको सब्सिडी देते हैं और ये 20% सब्सिडी के लिए अभी 4 साल में 3 साल में हमारे पास कुल 64 एप्लीकेशन आई है और 86 शिप के लिए आई है और कुल मिला के 320 करोड़ रुपीस हमें देना होता है और सब हमारे लिए शिप बिल्डिंग के लिए फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी एप्लीकेशन 10 साल में आएगी और जितना शिप बिल्डिंग इंडिया में होगा उसको हम 20% इंसेंटिव देंगे, फंड का कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है। सेकंड सप्लीमेंट्री विकास महात्मा। सर, ये जो पॉलिसी तय हुई दिसंबर 2015 में, उसके बाद में डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में कितनी बढ़ोतरी आई और उनके कारोबार में कितना बढ़ोतरी आई रुपीस में? जब न्यू शिप बिल्डिंग इंसेंटिव पॉलिसी आई है उसमें से आज तक हमें 64 एप्लीकेशन मिली है, उसमें से 64 एप्लीकेशन में 86 शिप अभी बन रहा है, उसके लिए हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है और कुल मिला के उससे 520 करोड़ का शिप अभी बिल्डिंग में आ रहा है। डोरा सिंह जी। Thank you, Chairman, sir. Through you, I want to know from the Honorable Minister that I appreciate what he has already told, that he has ample fund for shipbuilding activities and development of shipbuilding activities. But I want to know that how the ministry will be effectively doing this development of shipbuilding activities if not dredging is done proper way. Because I know that in Bengal there is... Question. Dredging is the question. What is the fund allotment of dredging in Kolkata and other port to affect the development of shipbuilding activities? I've gone to the minister. If you have the information, give it, otherwise शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज और ड्रेजिंग वो दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन देश में से कुल मिला के 204 माइनर पोर्ट है और 12 मेजर पोर्ट है
और मेजर पोर्ट और मेजर पोर्ट का संचालन भारत सरकार करती है और माइनर पोर्ट का संचालन स्टेट गवर्नमेंट करते हैं या पीपीपी मोड से प्राइवेट लोग करते हैं। जब मेजर पोर्ट है उसमें कलकत्ता पोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है। कलकत्ता पोर्ट में जो ड्रेजिंग की आवश्यकता, क्योंकि वो रिवराइन पोर्ट है और रिवराइन पोर्ट में ड्रेजिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और देश में सभी पोर्ट पर आवश्यकता के अनुसार हम ड्रेजिंग करते रहते हैं और उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम का फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। राइट। क्वेश्चन 145 डॉक्टर शशिकला पुष्पा रामस्वामी ऑब्सेंट। मंत्री जी सप्लीमेंट्री डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी। Mr. Chairman, the Minister must be aware that as he has said in his answer, that the coastal regulation zone notification accords special consideration and identifies Gulf of Mannar as one of the critically vulnerable coastal area. Now, the government-appointed commission headed by Dr. Pachori on the Setu Samudram project had also declared this project, which goes through the Gulf of Mannar, as an environmentally disastrous project. Right. Yet, to date, the government has not formally scrapped the Setu Samudram project. Although on the Ram Setu matter, assurance was What given is the it will not be question, touched. Swamiji? So the question is, why has the government not scrapped the Setu Samudram project when a commission has said it's an environmental Right. disaster? मंत्री जी सेतु प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ स्वामी जी को पता है। ही इज हिमसेल्फ वेरी एक्टिवली एंगेज, लेकिन ये प्रश्न मेरे मंत्रालय में नहीं आता। जिस मंत्री से संबंधित है वहाँ मैं जरूर बताऊंगा। चलो। क्वेश्चन 146 श्री बिनोय विश्वम ऑब्सेंट। क्वेश्चन 147 मंत्री जी ले करा 146 146 laid on the table. 147 श्री पी भट्टाचार्य ऑब्सेंट। व्हाट इज हैपनिंग टुडे? ले इट मंत्री जी। दो मेरा नहीं है। 140 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम नितिन जी ले इट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 148 श्री शमशेर सिंह दिलो सप्लीमेंट्री। यस सप्लीमेंट्री दिलो जी। सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन के मुताबिक 13 स्पोर्ट्स सेंटर जो हैं वो सैंक्शन किए हैं, पर उन सेंटरों में चाहे पंजाब हो या दूसरे स्टेट के सेंटर हैं, वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिंथेटिक जो गद्दे हैं या स्पोर्ट्स किट्स हैं या डाइट है, वो प्रॉपर स्पोर्ट्स जो है उनको स्पोर्ट्समैन को नहीं मिले। और पंजाब में केवल 428 है और उसमें से 368 बच्चे पुरुष हैं और 160 गर्ल्स हैं। इन सब के लिए प्रॉपर आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सरकार इनको, ठीक है सेंटर खोल दिए, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, डाइट नहीं मिलती और सारे बच्चे जो गरीब फैमिलियों से आते हैं और जो आम अमीर फैमिलियों से बच्चे नहीं आते और गाँव के आते हैं। सेकंड सप्लीमेंट आएगा सर। पंजाब में जितना भी स्पोर्ट्स सेंटर हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से चला रहे हैं और राज्य सरकार का भी कुछ है, हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया हुआ है। मैंने अभी इसका रिव्यू मीटिंग लिया, मैं पटियाला भी जाके आया और वहाँ रिव्यू लेकर के जो जरूरी है हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए, वहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और बाकी खिलाड़ियों के लिए जो ज़रूरत है उसका हमने रिव्यू लिया और सैंक्शन भी हो गया, काम भी चल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। डाइट के बारे में सर हमने एक इम्पोर्टेंट निर्णय लिया कि चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो या जूनियर खिलाड़ी हो, सबको खाने पीने का जो प्रावधान है इसमें हमने खुले छूट दे दिया है, चाहे वो स्टेट का खिलाड़ी हो, सेंट्रल का हो। खाने का छूट दीजिए, पीने का मत दीजिए। पीने मतलब सर वो जो स्पोर्ट्स के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के लिए जो ड्रिंक्स एनर्जी बूस्ट वगैरह जो होते हैं, ये सारा सप्लीमेंट्स, जितना एनर्जी सप्लीमेंट ड्रिंक्स है वो खराब वाला ड्रिंक्स नहीं बोल रहा हूँ सर, खिलाड़ियों के लिए जो अच्छा वाला ड्रिंक्स है हम वो दे रहे हैं। राइट। सेकंड सप्लीमेंट्री दिलो जी। मैं मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि खेलो इंडिया जो अब इन्होंने स्पोर्ट्स का नाम चेंज किया है खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया के तहत
मैं समझता हूँ कि इन्होंने यूनिफॉर्मिटी नहीं बरती फंड एलोकेट करने में, और मुझे खुशी है कि इन्होंने अपनी स्टेट के लिए तो तकरीबन 39 करोड़ 50 लाख रुपया रखा है। बाकी जो स्टेट्स हैं, पंजाब को एक पैसा नहीं दिया इस साल में, और पिछले साल में भी इन्होंने पंजाब को 6 करोड़ रुपया दिया। और जबकि स्पोर्ट्स जो मांग, मैं तो कहता हूँ कि ये उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन बेस होना चाहिए, खिलाड़ी कहाँ से आते कुछ हैं? बेसिस होना चाहिए। और सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने अपनी स्टेट को दे दिया। वो तो भारत में है ना, कुछ है। मेरा मंत्री बनने के बाद मेरे राज्य को 1 रुपया अभी दिया नहीं है। आप पुराना लीज देख रहे हैं। प्लीज नहीं ऐसा संवाद नहीं, वो 2017 मंत्री जी ने गलत बोला, आपको मालूम है इसके लिए उपाय क्या है? बाद में आप नोटिस देके उनको, और वो बता रहे वो मंत्री बनने के पहले किया, ऐसा बता रहे। सर, पंजाब को कोई कमी नहीं है, लेकिन फंड देने का प्रक्रिया तो मेरे ख्याल से इसमें सर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो पैसा दिया है पंजाब में, इतना पैसा जो आपको मैंने ये खबर दिया हुआ है, ये लिखित में, ये लागत नहीं हुआ। जो पैसा दिया सर वो खर्चा नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार में एक नियम है, जितना पैसा दिया आप उसका 40% भी अगर खर्चा नहीं हो रहे हैं तो दूसरा कैसे देंगे सर? वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, अदरवाइज कोई रुकावट नहीं है पंजाब के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्वेश्चन 149 श्री एस मुथुकरप्पन। क्वेश्चन नंबर 149 सर। एक विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है सप्लीमेंट्री। सर, I have been given to understand that Hindustan Aeronautic Limited is facing serious financial difficulties, and that is why Hindustan Aeronautic Limited would not agree to the demand of its employees. The mother cause of financial difficulties is that the government is yet to release outstanding amount of over 20,000 crore to the company. So my first supplementary question is whether the Hindustan Aeronautic Limited was able to realize the amount from the government. Right. Mantri ji. सभापति महोदय, जहाँ तक एचएएल की हड़ताल का प्रश्न है, हड़ताल अब पूरी तरह से वहाँ अब समाप्ति पर है, क्योंकि 13 सीटिंग्स मैनेजमेंट की और वहाँ के लेबर यूनियंस के साथ हो चुकी हैं, और अंतिम मीटिंग जो 13th मीटिंग हुई है सीटिंग्स मैनेजमेंट की और वहाँ के लेबर यूनियंस के बीच, वह 28 और 29 नवंबर को ही है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें मैनेजमेंट ने जो भी ऑफर दिया है उसको लेबर यूनियन ने अब मान लिया है, और अंततोगत्वा 5 दिसंबर को पुनः एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें एमओयू पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर हो जाएगी। सेकंड सप्लीमेंट्री मुथुकरप्पन जी, आर यू हैप्पी? Yes. Honorable Minister in his reply has stated that 13 rounds of discussion held with the trade unions. I would like to know whether these negotiations or discussion were held prior to the employees went to strike from 14/10/2019 to 22/10/2019. What were the direction given by the Honorable High Court of Karnataka in this regard, and whether the employees trade unions have agreed to the point of view of Right. You can't go on asking supplementary. मंत्री जी। जहाँ तक हाईकोर्ट के जजमेंट का प्रश्न है, यह वेल नोन है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हाईकोर्ट की जजमेंट के संबंध में जानकारी देने का, यदि आप समझते हैं कि हमारे पास जजमेंट की कॉपी नहीं है कि मैं पढ़कर बताऊँ कि क्या जजमेंट था, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि जो जजमेंट था कोर्ट का, उस कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही वह हड़ताल उस समय लेबर यूनियन ने विड्रा की थी, वह समाप्त हुआ था। लेकिन नेगोशिएशन का सिलसिला मैनेजमेंट और लेबर यूनियंस के बीच लगातार चल रहा था, और जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय आपको जानकारी दी, 13 सीटिंग्स उनके साथ हो चुकी हैं। अब अल्टीमेटली मामला लगभग अब रिजॉल्व हो चुका है, और 5 दिसंबर को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी सिग्नेचर हो जाने की पूरी संभावना है। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, उससे संबंध एचएएल। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो एचएएल के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया उसके सापेक्ष उत्पादकता उसकी क्या है, और विशेषकर एचएएल लखनऊ की उत्पादकता के बारे में कोई ऐसा अचीवमेंट है वहाँ का, मैं जानना चाहूँगा।
सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस प्रश्न से यह सीधे संबंधित नहीं है। इसके लिए हमको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तभी मैं सदन को अवगत करा सकता हूं। लेकिन यदि सदस्य ने पूछा है तो मैं उनके पास निश्चित रूप से जानकारी भेज दूंगा। क्वेश्चन 150, रिपुन बोरा। Thank you, sir. My question was actually, Defense Ministry has sent one proposal to Finance Ministry to waive the income tax on the disability pension for defense personnel. Now, Minister has replied that Defense Ministry has written a letter to CBDT, and CBDT has also replied. Now, I want to know from the Honorable Minister whether Finance Ministry has agreed to this proposal of the Defense Ministry. Right. ये डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स के एग्जम्पशन को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक क्लैरिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री से सीख किया था। और सभापति महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्लैरिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यानी सीबीडीटी के द्वारा अब डिफेंस मिनिस्ट्री को प्राप्त हो चुका है। और डिसेबिलिटी पेंशन पर जहां तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन देने का प्रश्न है, यह उन्हीं लोगों को इनकम टैक्स का एग्जम्पशन प्राप्त होगा जो ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इनवैलिडेट हो जाएंगे। केवल उन्हीं को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन की सुविधा प्राप्त होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री, रिपुन जी। Sir, I want to know from the Honorable Minister whether three forces personnel, that is Army, Navy and Air Force, are getting three different separate compensation facilities for disability, sir? अब सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इसके बारे में मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी और जानकारी प्राप्त होने के बाद ही मैं सदन को मैं अवगत करा पाऊंगा। लेकिन वैसे सारी डिटेल यदि जानकारी चाहेंगे कि डिसेबिलिटी या पेंशन क्या है और इसमें ये कैसे निर्धारित होता है और किन मामलों में डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, तो ये बहुत लंबा है। और इस समय के मौजूदा प्रोविजंस भी यदि आप जानना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको मैं दे दूंगा। लेकिन जो आपने जानकारी चाहिए है, मैं समझता हूँ सीधा इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। सभापति महोदय, इसकी मैं जानकारी हासिल करके माननीय सदस्य को अवगत करूंगा। अमर शंकर साबले, यू आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। वेरी रेयरली रेवोल्यूशंस हैपन, विप्लव कभी कभी आते हैं, हर एक दिन विप्लव कैसा होता है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से जानना चाहता हूँ, दिव्यांग रक्षा कर्मियों की अच्छी सेवा परिवार से होने के लिए उनकी परिवार को कोई विशेष सुविधा देने की सरकार की कोई योजना है? सभापति महोदय, यहाँ तक जो भी हमारे वेटरन्स हैं, जो भी हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स तथा नेवल फोर्स के अथवा एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं, उनकी चिंता सरकार करती भी है और उनके प्रति समस्त देशवासियों के मन के अंदर एक बेहद सम्मान भी है। वो बहुत दिन के बाद राजनाथ जी का सवाल है ना, इसलिए राजनाथ जी से इतना प्यार करते सदस्य, संबंधित असंबंधित सब पूछते रहते हैं। Honorable members, I'm sorry I have to make an observation. It's happening time and again. 15 started questions. 6 members were absent. After having asked the question, if they are absent, it is a sorry state of affairs. Sorry state of affairs. I hope the media will publish the names of those honorable members who are kind enough not to come to the house in spite of putting the questions also. It's a serious matter. Lot of time. And today is Monday, working day. Working day. The 0 hour submission. The special mention kahan hai? The house is adjourned to meet at 2 p.m. today afternoon.